Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. For callers from outside Delhi, please put the prefix 011. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद वैभव। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र का। और आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331 4444, 2342 1050 और 2331 0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। Absolutely, Sparsh. First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon youth to participate in building a Viksit Bharat in his Mann Ki Baat address. India rejects $300 billion annual climate finance deal at COP29, calls it insufficient. And domestic markets to focus on India's quarterly GDP numbers, Fed meeting minutes and FIR's movements for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में भाग लेने का आग्रह किया। भारत ने COP29 में $300 बिलियन के वार्षिक जलवायु वित्त समझौते को खारिज कर दिया और इसे अपर्याप्त बताया। और भारत के तिमाही जीडीपी आंकड़े, फेड नीति बैठक के मिनट्स और विदेशी निवेशकों की गतिविधि अगले सप्ताह कर सकती है घरेलू बाजारों का रुख तय। And beginning with our first story, Prime Minister Narendra Modi today called upon the youth to build a Viksit Bharat. Addressing the nation in his 116th edition of Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister announced that on the 162nd birth anniversary of Swami Vivekananda next year, Viksit Bharat Young Leaders Dialogue will be held in Delhi. The country celebrates Youth Day on the 12th of January every year to mark Swami Vivekananda's birth anniversary. The Prime Minister said crores of youth from all over India will participate in the dialogue. 2,000 such youth selected from villages, blocks, districts and states will gather at the Bharat Mandapam for the dialogue. Mr. Modi called upon the youth to seize this opportunity to actively participate in the process of nation building. He said that it's a great opportunity for those who are going to build the future of India. Picking up from where he left in the last edition of Mann Ki Baat, PM Modi also called upon the tech-savvy youth to rise and prevent the elderly from falling prey to digital arrest and online frauds. Mr. Modi said that the elderly are most prone to cyber crimes. He reiterated that there is no provision of digital arrest in the government. इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं राज। राज जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। हेलो जी राज जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। शेयर मार्केट के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड कितना आरामदायक है? तो आप बताते हैं शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क रहता है, म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क रहता है कि नहीं रहता? क्योंकि पिछली बार एक हमने सवाल किया था एक्सपर्ट से, तो उन्होंने हमें ऐसी राय दी कि जिससे हमारा झुकाव आपके शेयर मार्केट में जाने की बजाय उन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया कि हम जा नहीं पाएंगे। क्योंकि कहते हैं जी आपको तैरना नहीं आता तो आप इसमें मत आइए। जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं, हम इसको सुनते हैं, बड़े प्यार करते हैं अपने कार्यक्रम को,
तो इसमें हमें सुझाव दीजिए कि हम नए जो ग्राहक हैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में जाने के लिए हम तैयार हैं। जैसे मेरे पास कुछ जी आकाश जी। देखिए राज जी, बेसिकली जो आपके म्यूचुअल फंड्स है और ख़ास तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो वो भी आपके शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में जो फ़र्क है वो ये है कि जब आप शेयर मार्केट में जाते हैं आपको वहाँ पे खुद ये तय करना होता है कि आप किस कंपनी का शेयर खरीदेंगे, कब खरीदेंगे और कब उसको बेचेंगे। वहीं फ़र्क ये आ जाता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो ये सारे काम है ये वहाँ पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो कि एक छोटे से फीस के बदले में आपके लिए ये सारे काम करता है। तो जो एक जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो एक सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि उसके लिए एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत होती है और एक रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे से जान लें कि वो कंपनी क्या करती है और उसका शेयर उससे खरीदना मार्केट में सही रहेगा भी कि नहीं रहेगा। साथ ही में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग टाइप का टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है कि जब मार्केट में बीच बीच में, जैसे आप देख रहे होंगे अभी पिछले 1-2 महीने में मार्केट नीचे आई है, तो क्या ऐसे में आपको निकलना है या नहीं निकलना है, क्या करना आपके लिए सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। बट वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में ये सारे काम जो है आपके लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलता है वो ये मिलता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है एक बहुत ही लो एंट्री अमाउंट से। कहा यह जाता है कि कभी भी आपको सिर्फ 1-2 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा, आपका सारा का सारा पैसा उन 1-2 कंपनीज पर निर्भर हो जाएगा। तो एक डाइवर्सिफाइड कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें कि कुछ अच्छे नंबर में कंपनीज हो। तो अगर आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और वो खुद आप बनाना चाहे तो उसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। बट म्यूचुअल फंड्स में आप केवल 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, उससे कम में भी कर सकते हो और आपको वहीं पे पूरे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि वो एक पूल्ड व्हीकल है। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, ज़रूर करिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करिए। और अगर आप शुरू कर रहे हैं जैसे कि आपने कहा तो डायरेक्टली शेयर मार्केट में ना जाइए, आप म्यूचुअल फंड ही चुनिए। And we have our next caller from Delhi, Yogesh, calling in. Yogesh, welcome to the show. Please ask your question. जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर मेरा सवाल ये है कि मार्केट में हमने अभी एक न्यूज़ सुन रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि डीप वैल्यू बाइंग आने की वजह से मार्केट में रिवर्सल आया। तो ये वैल्यू बाइंग कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि हम वैल्यू बाय कर रहे हैं या मार्केट को टाइम कर रहे हैं। मेरा सवाल नंबर 1 तो ये है कि मार्केट टाइमिंग में और वैल्यू इन्वेस्टिंग में कितना डिफरेंस है। दूसरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड के जरिए क्या हम वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, अगर हम नॉर्मल लार्ज एंड मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में डालते हैं तो क्या उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। देखिए योगेश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैल्यू और टाइमिंग द मार्केट में डिफरेंशिएट कैसे करें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखिए वैल्यू बाइंग बेसिकली ये होता है कि आपका ये पर्टिकुलरली मानना है कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस वक्त मार्केट में जितने रुपयों में अवेलेबल है उसकी जो वर्थ है उससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि आसान भाषा में ये कहा जाए कि आप सस्ते में खरीद रहे हैं, आप कोई चीज़ सस्ते में खरीद रहे हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है जो चीज़ आपको लगता है कि वो सस्ती मिल रही है मेरे हिसाब से वो सस्ती ना मिल रही हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और टाइमिंग द मार्केट के लिए देखिए ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमको नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा है कि अभी नीचे चलेगा, ये सही टाइम है, टाइम कर सकते हैं, बट हु नोज इसके बाद आगे और नीचे चले जाए। रही बात कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में करना चाहते हैं तो वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है जहाँ पे कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ये सारा काम करते हैं। और अगर मैं आपको कुछ फंड्स के नाम देना चाहूँ तो SBI कॉन्ट्रा हो गया और टाटा इक्विटी PE हो गया। ये कुछ ऐसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाले फंड्स हैं जो कि अच्छे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको एक वैल्यू बाइंग करने में म्यूचुअल फंड के रूट के साथ हेल्प करेंगे। जी अब रुख करते हैं सहारनपुर का। सहारनपुर से हमारे साथ विवेक जुड़े हुए। विवेक जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मार्केट मंत्र टीम को और एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरे सर कुछ क्वेश्चन है। जैसे सर मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ तो मुझे अपना सैलरी का कितना % म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहेंगे।
दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है, मेरा पोर्टफोलियो में एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ है, एसबीआई काउंटर डायरेक्ट ग्रोथ है, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट डायरेक्ट ग्रोथ है और निपॉन इंडिया मल्टी कैप डायरेक्ट ग्रोथ है। सर एसबीआई ब्लू चिप और को तो मैं 7 ईयर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1000 का सिप है, और ये एसबीआई काउंटर को मैंने 1.5 ईयर हुआ है, और पारस्परिक 5 मंथ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल और निपॉन को मैंने 1 मंथ आपका मार्केट मंत्रा सुन के ही ऐड किया है। पहला, इसमें कोई ओवरलैपिंग है या मुझे कुछ करेक्शन की जरूरत है तो वो बताइएगा सर। और दूसरा, जैसे एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप पारस्परिक फ्लेक्सी कैप या फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो क्या हम अपने पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं? देखिए विवेक जी, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। जो सबसे पहले तो अगर बात करें कि सैलरी का कितना प्रतिशत आपको म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, यहाँ पे मैं देखिए कहूँगा कि एक जो ब्रॉड थंब रूल है वो ये कहा जाता है कि आपको अपनी इनकम का कम से कम 20% यानी कि 20% सेव करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक केवल म्यूचुअल फंड्स में हो, म्यूचुअल फंड्स भी कई प्रकार के हैं, बट ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है कि आप 20% सेव करिए। बट साथ ही मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही ब्रॉड थंब रूल है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें। हर किसी की एक जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, जो इनकम लेवल होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप स्टेप इन करें, क्योंकि बहुत ये हो सकता है कि किसी का जो इनकम लेवल है या जो एक्सपेंसेस है उसके लिए ये बहुत ही आसान हो कि वो अपना 30-40% सेव कर सके और इन्वेस्ट कर सके, और क्योंकि हमने एक 20% का थंब रूल डाल दिया तो बाकी का पैसा खाली स्प्लर्ज कर रहा है, तो वो सही नहीं रहेगा। वहीं पे कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि वाकई में उसकी ज़रूरतें कहना नहीं चाहिए, सर्कमस्टांसेस और नीड्स इतनी ज़्यादा है कि उसका 90% इनकम वहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे आप 10% इन्वेस्ट करिए। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। दूसरा मैं ये कहूँगा, जो आपका पोर्टफोलियो है, जो भी आपने मेरे को फंड के नाम बताए उनमें मेरे को ब्रॉडली एज सच कोई दिक्कत नहीं लग रही, सारे अच्छे फंड्स है, सब ठीक है। और बाकी इसमें जो बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कुछ कहा कि कुछ फंड्स में तो अभी आपने 1-2 महीने पहले भी शुरू किया है, इस वक्त बहुत ज़रूरी ये है कि आप लंबे, क्योंकि सारे इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, एक आध बीच में अग्रेसिव हाइब्रिड था आईसीआईसीआई का, सब बढ़िया फंड है, लेकिन इनमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इनमें आप निवेश करते रहिएगा। बीच में अभी मार्केट जैसे थोड़ा सा चल रहा है, बीच में गिरता है, तो घबरा के एसआईपी नहीं बंद करिएगा। याद रखिएगा, जब भी मार्केट नीचे आता है, अगर उस वक्त आपकी एसआईपी जा रही है तो आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि आप कोई सी चीज़ सस्ते में खरीद रहे हैं जो आपको बाद में जाके ज़्यादा बेनिफिट देगी। और हम अपने पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप भी फंड रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। 1-2 फंड सही है, लेकिन सेम कैटेगरी में ऐसा ना हो कि 4-5 हो जाए, क्योंकि तब ओवरलैप का ज़्यादा सर्कमस्टांसेस रहते हैं। बट 1-2 फंड आप अपना रख सकते हैं अच्छे फंड्स में। And now we have our next caller from Ghaziabad. We have Gaurav on the line. Gaurav, welcome to the show. Please ask your question. Good evening. Good evening, Gaurav. Mutual fund program is one of the best program for investors, small investors like us. So मेरा सवाल है, मेरे पास कोई भी रिच फंड नहीं है, क्या मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ? मैं जनरली फ्लेक्सी, स्मॉल, मिड कैप में डालता हूँ। पहला सवाल। दूसरा सवाल सर, ये quant fund, how are they managed? If they don't have fund manager, then how are they able to avoid companies like, जिसमें भी fiasco हो गया, अडानी टाइप की कंपनी को भी, उसमें तो सिर्फ वो पैरामीटर्स देखते हैं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, नाम ने पैरामीटर्स देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट देखता नहीं है, या मैनेजमेंट देख के भी वो देखता है क्वांट वाला। और सर तीसरा सवाल है, क्वांट, डिफेंस फंड और टेक फंड और बैंकिंग, इसमें से आप किसमें थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के लिए प्रमोट करेंगे या बोलेंगे? थैंक यू। देखिए, जो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि रीट्स फंड्स पे अगर आप नहीं कर रहे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो लॉन्ग टर्म में इक्विटी में निवेश रखिए, और स्टेबिलिटी के लिए आपके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम होना चाहिए एक थोड़े सही अमाउंट में। उसको एक अपना एसेट एलोकेशन चुनिए और वो फॉलो करिए, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड, जो आपका सवाल था कि क्वांट फंड कैसे मैनेज करते हैं, सो देखिए, सबसे पहले आपने बीच में एक वर्ड बोला था कि उसका कोई फंड मैनेजर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। उन लोगों की एक जो स्ट्रैटेजी है वो लोग कहते हैं मल्टी फंड मैनेजर। सो वो लोग एक बहुत ही क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते हैं। उन लोगों ने कुछ अपने एल्गोरिथम्स बना रखे जिसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि
कब कौन सा शेयर खरीदना है, कब कौन सा शेयर बेचना है। बट पीछे वहाँ पे भी फंड मैनेजर्स बैठे हैं, आपके फंड के लिए फंड मैनेजर्स है, बट वहाँ पे उनका ह्यूमन इंटरवेंशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है आमतौर पे बाकी फंड्स के मुकाबले। और साथ ही में मैं एक ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो क्वांट एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल है। आमतौर पे ये कहा जाता है, जो इन्वेस्टिंग गुरुज भी है जैसे वॉरेन बफेट है, सब है, ये कहा जाता है कि आप एक स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, उसके फंडामेंटल्स देखिए और बाय एंड होल्ड लीजिए। बट ये बाय एंड होल्ड से मतलब है कि एक दफ़ा खरीद के लंबे समय तक रखिए। बट जो क्वांट के फंड्स है वहाँ पे वो अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे करते हैं, और उसी वजह से अगर देखा जाए तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा चर्न है, वो बहुत जल्दी जल्दी शेयर्स खरीदते बेचते हैं। पिछले कुछ जब से ये आया है शुरू के, ये कुछ 2019-20 के आसपास आया था, और शुरू के एक आध साल थोड़े ठीक ठीक रहे थे, बहुत अच्छे नहीं रहे थे, और कोविड के बाद से जो रैली आई है उसमें उसके फंड्स ने बहुत अच्छा करा है। बट अभी जो एक मार्केट के टेस्टिंग टाइम्स है ना, वो इन फंड्स को देखना अभी काफ़ी बाकी है, तो वहाँ पे देखना ज़रूरी है कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसा काम करती है। और साथ ही में मैं ये कहूँगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे पूरा ही डिपेंड करता है। अगर इनफैक्ट आप देखेंगे, जो आपका क्वेश्चन था कि ये कैसे बाकी की कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे फियास्कोज होते हैं, तो वहाँ पे देखिए कुछ भी ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि इनका पूरा एक एल्गोरिथम बेस्ड है, जो कि इनकी प्रोप्राइटरशिप पूरा स्ट्रैटेजी है। बट अभी ये जो अदानी के स्टॉक्स हुए थे, अभी जो फॉल आया था, अगर आप देखेंगे तो जिन फंड्स में ये काफ़ी ज़्यादा था उसमें अच्छा खासा इनमें पैसा था, बजाय इसके अगर आप देखें कि जब सितंबर से जो पिछला जो मार्केट का पीक था 26-27 सितंबर का, उससे अब तक का जो मार्केट का फॉल आया है लगभग अराउंड 10% का, अगर उसमें हम ये निकाले कि जो कौन से ऐसे 20 टॉप के फंड्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे, उसमें क्वांट के काफ़ी सारे फंड्स मौजूद है। तो अभी इनकी एक अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी है, तो बहुत ज़्यादा पूरा कोर पोर्टफोलियो इन पे मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा डालिएगा, एक पोर्टफोलियो का थोड़ा एलोकेशन, और फिर देखिए कि कैसा रहता है। जी। और मुंबई से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, which will give better return among following options: doing asset allocation between debt and equity, or doing asset allocation between gold and equity? Okay, so Sanjay, I would say all the three have a different role in your portfolio. So equity is basically used to provide growth in your portfolio, and when it comes to a long-term portfolio, it should especially be should get the maximum share comparatively. Fixed income generally provides stability and brings stability to your portfolio. Gold, on the other hand, we generally don't suggest it as a long-term investment, simply because it is an unproductive asset class like equity, because you get some kind of dividends in equity. In fixed income, you get you get interest. And when it comes to gold, its price changes simply basis the demand and supply in the market. That said, it acts as a very good store of value and a hedge for your portfolio. It is generally seen whenever there is uncertainty in the market and whenever their equities decline, gold generally shines. So for this purpose, it is suggested that if you are one of those and you want to invest in gold for the hedging purpose, allocate a small portion, maybe around 5 to 10% in the portfolio. So you can have all the three in the portfolio, but basis your horizon, if it's a long-term goal, give maximum weightage to equity, then fixed income, and a very small portion to gold. And we have the next caller from Jhansi. We have Ronak on the line. Ronak, welcome to the show. Please ask your question. नमस्ते सर, मैं रौनक बोल रहा हूँ झांसी से। मेरा सवाल यह है कि मेरा बच्चा अभी 2 साल का है, उसकी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है जब वो 18 साल का हो जाए, मतलब टाइम हॉरिजन करीब 16 साल का है। तो एनपीएस वात्सल और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दोनों में प्रो कॉन्स क्या क्या रहेंगे? मैं 20 से 25 हजार रुपए मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखिए रौनक, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो एनपीएस वत्सल्य है अच्छी स्कीम है, बट अगर आप इसको देखें, ये जो नॉर्मल एक एनपीएस है हमारा, उसका कंटिन्यूशन है, उसका एक अलग वेरिएंट है जिसमें कि आप माइनर के नाम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट सेड, इसमें एक जो चीज़ है, ये आपकी मैच्योरिटी तभी होगी जब आपका बच्चा 60 ईयर्स का एज का हो जाएगा।
उससे पहले आपको पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है, लेकिन वो केवल 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, उससे ज्यादा नहीं। मेरा ये मानना है कि देखिए, जैसे अगर आपने कहा 18 साल का, और उसके अलावा भी जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है उनके एजुकेशन की, जो कि आपको उनकी 60 साल के उम्र के तक पहुंचने से बहुत पहले चाहिए, जब वो 20-25 साल के होंगे। तो तब कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन रहेगी जिसमें कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी हो और आपको पूरा इक्विटी का पोटेंशियल दे, और आप जब चाहे जब जरूरत हो तब आप निकाल सके। तो उसके कंपैरिजन में कहूंगा, अगर आप एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, या जैसा कि आपने कहा अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। जी, और बेंगलोर से हमारे साथ अयान गांगुली जुड़ चुके हैं। अयान जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछे अपना। थैंक यू स्पर्श जी। मेरा नमस्कार मार्केट मंत्र की टीम को। जी नमस्कार। मेरा नमस्कार आकार जी को भी। नमस्कार सर, मेरे 3 सवाल है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा समय नहीं लेने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं 34 इयर्स का हूं और मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं। तो सर, महीने के एंड में मेरे हाथ में अगर मैं मेरे सैलरी का 25% के आसपास बचा पा रहा हूँ एज ए सेविंग्स, तो उसके कितने प्रतिशत मुझे लिक्विड फॉर्म में रखने चाहिए और कितने प्रतिशत म्यूचुअल फंड में SIP करने चाहिए? मैं कर रहा हूँ SIP पिछले ऑलमोस्ट 3 सालों से। सर, क्या इस तरीके से सोचना सही है कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि आज मैं ₹1 कर रहा हूँ, उसको 6 महीना बाद Y% से इंक्रीज करना चाहिए? तो ये मेरा पहला सवाल। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने जो भी अभी तक निवेश किया है SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में, मैं आज से 20-25 साल बाद कभी विड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसा सोच के मैंने लगाया है पैसा। तो सर, क्या एज ए रिटायरमेंट पर्पस खाली SIP करना काफी है या फिर मुझे NPS में भी निवेश करना चाहिए? इसमें सर मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं न्यू टैक्स रेजिम में आता हूं, मेरा NPS से कोई टैक्स बेनिफिट है नहीं, तो क्या मुझे SIP जारी रखना चाहिए या साथ में NPS भी करना चाहिए? और सर, मेरे तीसरे सवाल ये है कि मेरे हाथ में अगर कुछ पैसा बच जाता है सरप्लस साल के बीच में या साल के अंत में, उसमें से मैं अगर एक छोटा सा अमाउंट अगर मैं गोल्ड में निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या वो सही डिसीजन रहेगा? देखिए अयान, जो आपका सबसे पहले क्वेश्चन था कि कितना अमाउंट, जैसे अगर आप 25% सेव कर रहे हैं तो कितना लिक्विड रखे, कितना म्यूचुअल फंड्स में SIP में इन्वेस्ट कर रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बैठे एक पेपर पेन लीजिए और ये सोचिए कि आप किन गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कब कब किन गोल्स के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, कितने सालों में, और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्या ऐसा है कि आज से 3 साल के बाद आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए या स्कूल में एडमिशन के लिए चाहिए, या आप 2-3 साल के बाद अपनी कार अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, आपको उसके लिए पैसे चाहिए, या ये सारा पैसा ऐसा है कि आपको अभी नहीं चाहिए, आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। आमतौर पे ये कहते हैं कि अगर आपका गोल 5 साल से बाद के लिए ड्यू है तो ही इक्विटी में निवेश करें, वरना ना करिए। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई करिए, उनको प्रायोरिटाइज करिए और उनके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। सेकंड, मैं यहाँ पे जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपना एक इमरजेंसी कॉर्पस मेंटेन करें, जो कि हम लोग कहते हैं कि आमतौर पे आपके जो भी 6 महीने के एक्सपेंसेस है, जिसमें कि आपकी सारी EMIs इंक्लूडेड है, उतना पैसा आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में ऐसे एकदम तैयार रखें कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी अगर जरूरत पड़ती है तो आपके पास एकदम इमीडिएटली अवेलेबल है। सेकेंडली, आपका जो रिटायरमेंट के लिए क्वेश्चन था, देखिए NPS एक बहुत अच्छी चीज है और जो उसकी ब्यूटी है वो ये है कि आप जो आमतौर पे हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग एक डिसिप्लिन लैक करते हैं। हम लोग ये सोच के पैसे इन्वेस्ट तो जरूर करते हैं कि ये रिटायरमेंट के लिए, बट कुछ सालों के बाद, 4-5 सालों के बाद, जब जहां पे कोई सी जरूरत आती है, हम लोग उसको पहले ही रिडीम कर लेते हैं। तो NPS आपको ऐसा नहीं करना देता, वहां पे बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स है और आपका अधिकतम पैसा आपके 60 साल की एज तक वहां पे लॉक हो जाता है। तो NPS की जो एडवांटेज है, जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है, वो वहीं पे कि अगर कोई निवेशक ऐसा है जो इस टाइप का डिसिप्लिन लैक करता है, उनको लगता है कि वो बीच में पैसा निकाल लेंगे कुछ जरूरत पड़ने पे, तो उनके लिए NPS बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे आप चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे और आपका 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ पूंजी जरूर इकट्ठी हो जाएगी।
And we have our next caller, Atanu Saha from Kolkata. Welcome to the show, Atanu. Please ask your question. Yes. Good evening. Sir, my question is, what's the difference between direct and regular mutual fund? And NPS, the question rises within time, NPS link with insurance. Its pros and cons. Insurance company. So, going with the first question, the difference between direct and regular. So, direct plans have a relatively lower expense ratio than the regular plans, simply because when you're investing in a direct plan, you're investing direct with the fund house. There is no intermediary in between, to which the fund house has to give a certain commission, which is eventually charged in the form of a higher expense ratio from your own capital. So that's the biggest benefit. So at the end, you are able to get a slightly higher return. But that said, if you are someone who easily gets anxious, or you need hand holding, you don't know which fund is right for you, in which fund should you be investing, and how to decide on a particular fund, or you are not a DIY investor or not internet savvy. So for such kind of investors, it is good to go with the regular plan and take their help of the advisors. जी, और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ चुके हैं. केशव जी, मार्केट मंत्र में स्वागत है. प्लीज सवाल पूछिए अपना. नमस्कार जी, नमस्कार. प्लीज सवाल पूछिए. सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, ये मैनेजर हमें कहाँ संपर्क करें? जहाँ ये बैठे हैं उनसे हम कैसे संपर्क करें? कैसे उनसे जानकारी लें? हम इन्वेस्ट केशव जी, ये जो फंड मैनेजर्स है, ये फंड हाउस के अपने हेड ऑफिस में, जो कि ज़्यादातर मुंबई में है, वहाँ पे होते हैं. और ये टाइमली हर मंथ या हर क्वार्टरली अपनी एक कमेंट्री निकालते रहते हैं, जिसमें कि इनका पूरा व्यू आप देख सकते हैं. और साथ ही में हर महीने एक फैक्ट शीट भी आता है, जिसमें कि आप डिस्क्लोजर्स देख सकते हैं, इनके पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स. And moving over to our headline story, at COP29 in Baku, Azerbaijan, world leaders agreed on the Baku finance goal, committing $1.3 trillion in climate finance for developing countries by 2035. This includes a core annual target of $300 billion, tripling the previous $100 billion goal. Despite the progress, developing nations, including India, criticized the agreement as insufficient, calling for greater ambition to address urgent climate needs. भारत के तिमाही जीडीपी आंकड़े, रूस यूक्रेन विवाद, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की गतिविधि अगले सप्ताह घरेलू बाजार का रुख तय कर सकती है. हाल ही में आए महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव परिणामों का असर भी बाजार में दिख सकता है. 29 नवंबर को आने वाले तिमाही विकास के आंकड़ों पर भी निवेशकों की निगाह बनी रहेगी. वैश्विक स्तर पर अमरीकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अमरीकी जीडीपी के आंकड़े तथा अन्य आर्थिक आंकड़ों और 27 नवंबर को FOMC की नीति बैठक के मिनट्स पर भी निवेशकों की निगाह बनी रहेगी. देखने वाली बात होगी कि क्या फेडरल रिजर्व तीसरी बार ब्याज दर में कटौती का संकेत देता है या नहीं. रूस और यूक्रेन संघर्ष से जुड़े घटनाक्रम आने वाले सप्ताह में बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध अब वैश्विक होता जा रहा है, और साथ ही उन्होंने उन देशों के सैन्य सुविधाओं पर हमले की चेतावनी दी जो यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं. आकार जी, आप अब श्रोताओं, वक्त है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का. और आकार जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon youth to participate in building a Viksit Bharat in his Mann Ki Baat address. India rejects $300 billion annual climate finance deal at COP29, calls it insufficient. And domestic markets to focus on India's quarterly GDP numbers, Fed meeting minutes and FII's movements for Qs next week. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.